Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to channel on which Nisara Montes preparation. Today we will discuss 20 important solved mathematics questions which are very important और मुख्तलिफ एग्जाम्स में ये रिपीट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हैं 20 क्वेश्चन हैं, डिफरेंट परसेंटेज के हैं, एवरेज के हैं, प्रोपोर्शन के हैं। ये मुख्तलिफ किसी पेपर से मैंने निकाले हैं और आज मैं इंशाल्लाह अपनी इस वीडियो में इसको कम्प्लीटली और डिटेल के साथ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.2 इज 50% ऑफ वॉच नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको नीचे सॉल्व कर लेंगे। ए गॉट 29 मार्क्स इन इंग्लिश आउट ऑफ 50% ऑफ मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.5% ऑफ 500 इज इक्वल टू ए एंड देन ए इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 4 है ए गॉट 630 मार्क्स इन एग्जाम्स आउट ऑफ एट 50% ऑफ मार्क्स। इंशाल्लाह इस पूरे को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आप इसको हमारे साथ रहिएगा तो नेक्स्ट नीचे इंशाल्लाह। Question number 5, if A is equal to 500, B is equal to 25, and C is equal to 1000, and D is equal to 200, then A plus B plus C plus D is equal to. Question number 6 है, multiply 300 times with 0 is equal to. Question number 7 है, हमारा question number 7 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 3 plus 7y is equal to 24, then y is equal to what? Question number 8 है 9 power 0 plus 0 power 9 is equal to what? Question number 9 है which one is not a prime number? Which one is not a prime number? Question number 10 है x ratio 5 proportion 3 ratio 5, what is product mean? Product of mean. Question number 11 है 5 ratio 5 proportion x ratio 5, what's product of extreme? Question number 12 है A has 5,000 and B has 20,000 and C has 30,000 and D has 10,000. What is difference between A and B's ratio? Next question है, I got 25 marks in English, 20 marks in physics, 25 marks in chemistry, and 20 marks in biology. Find average marks of A in all subjects. So solve करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर इसी वीडियो में 14 है, convert 5% in fraction, इसको भी solve करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, I purchase a car at 25 lakh and sold it at 23 lakh. What's the loss or profit percentage? So we will solve it later inshallah. Question number 16 है, two numbers are respectively 20% and 50% more than third number. The ratio of two numbers क्या है? Question number 17 है, in mixture of 60 liter the ratio, ये रोशन नहीं, this is a ratio. This is a ratio of milk and water 2.1. Further added, if the ratio is to be added 1.2, then the quantity of water to be added. We'll discuss in detail. Very important question है, बहुत important. 18 है, if 40% of number is equal to 2/3 number of another number, what is the ratio of first number to the second number? We will discuss it as well. Question number 19 है, if 0.75 ratio x proportion 5 ratio 8, then x is equal to what? We will discuss it inshallah. Question number 20 is, the sum of three numbers is 98. If the ratio of the first two second is 2:3, and what date of the second to third 5 ratio 8, then the second number is very important question. इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्स के पेपर हैं, एफपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के पेपर हैं और उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीएसएस के हवाले से, सीएसएस का जो जनरल लायबिलिटी का पोर्शन होता है 40 मार्क्स का, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छी तरह पढ़ लेते हैं
और इंशाल्लाह इसको सॉल्व करके हम यहाँ पर लाइक जिस तरह ये सॉल्यूशन से इस तरह हम इसको फर्स्ट बाय वन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्व करने में क्वेश्चन को। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इसको लॉन्च करने की, अगर ये हो सकता है। We will start. क्वेश्चन है कि 0.2 इज 50% ऑफ व्हाट नंबर। ओके, अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर वन है कि 0.2 इज 50% ऑफ व्हाट नंबर। यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ पर हमें टोटल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें टोटल नंबर को फाइंड करना है। तो अगर इसको इसको सॉल्यूशन ये है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम गिवन नंबर लिख लेते हैं। 0. ये 2, ये हो गया 0.2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ। जब हमें टोटल नंबर रिक्वायर्ड होता है तो हम 100 यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे। ये हमारा 100 आ गया। और ये हमारा इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, ये 50 जो एज ऑफ परसेंटेज है वो हमारा यहाँ पे आएगा। इसको हम बराबर करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अब इसके ऊपर टेबल लगा लेते हैं। लेकिन टेबल लगाने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट, वो कौन सी है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को जब हम खत्म करेंगे तो यहाँ पर एक नीचे जीरो दे देंगे। जब हमने जीरो दे दिया तो हमारे लिए इजी हो गया। तो हम अब हमारे पास 215, अब इस पे हम आराम से टेबल लगा सकते हैं। अगर मैं इस तरह करें, हम 2 जीरो इसको खत्म कर लिए, 2 जीरो हमने इसके खत्म कर लिए। अब यहाँ पर क्या बचा, अब 5 का टेबल 2 पे नहीं जा रहा, 2 का टेबल 5 पे नहीं जा रहा, तो हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, 2/5 आया। ठीक है जी। लेकिन हमारा आंसर जो ऑप्शन था, हम देख चुके हैं हमारा ऑप्शन में ये क्या था कि हमें यहाँ पर 2.5 आंसर है। तो फर्दर इसको हम एलाबोरेट करेंगे, क्या इसको क्या करेंगे, हम फिर डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमने देख लिया, आप ये डिवाइड कैसे, तमाम चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको चीज़ें समझ आती है, अगर आपको ये चैनल आपके सेशन और जो आपको जो आपके ये जो मटेरियल है आपको हेल्पफुल है और आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। इंशाल्लाह हम आपको कमेंट में भी रिस्पॉन्स करेंगे। अब देखें, ये 2, इसको 5 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 छोटा बड़ा है और 2 छोटा है, तो इसके ऊपर नहीं जा रहा, टेबल नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, हम पहले हम लाएंगे जीरो दे के पॉइंट देंगे। पॉइंट जब दे दिया तो हमने यहाँ पर जीरो दे दिया, ये अब 20 हो गया। 5 का टेबल हम 4 टाइम पढ़ेंगे, 4 5 इज, ये हो गया हमारा 20। जब ये हमारा 20 हो गया तो ये 20 कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0.4। ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ये फर्दर फिर लास्ट में जो पहले मैंने बता चुका हूँ शुरू में, जो इस पे ऑप्शन का मौजूद है, इसका ऑप्शन मौजूद क्या होगा, 0.5 इज इसका आंसर होगा 0.4। तो क्वेश्चन नंबर वन हमारा सॉल्व हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आता, आप वीडियो दोबारा देखें, अगेन अगेन देखें, और इनशाला अगर आप ये चीज अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आई होप कि आपका कोई भी इम्तिहान एंड किसी भी चीज का इम्तिहान आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2, ए गॉट 29 मार्क्स इन इंग्लिश आउट ऑफ 50। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मैंने पहले बताया कि पहले हमने टोटल मार्क्स को सॉल्व किया था हमने। अब यहाँ पर हमें वी हैव टू रिक्वायर्ड परसेंटेज, हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड परसेंटेज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखाना है, ये 20, क्या लिखाएंगे हम, 29, सॉरी 29 मल्टीप्लाई इज व्हाट परसेंटेज, 100 आ गया। एज ऑफ परसेंटेज हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये टोटल जो है ना यहाँ पर नीचे लिख लेंगे 20। तो ये क्या हो गया, ये 50 हो गया, सॉरी 50। तो अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर हम इसको टेबल लगा लेते हैं, 50 का टेबल। अब 1 टाइम 150 इज 50, यहाँ पर वो पॉइंट नहीं है डेसिमल, तो हमने इसलिए हमें आसानी हो गई, उसको हमें चेंज करने से पहले हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं। 150, 250 इज 200। अब यहाँ पर नीचे 1 बचा, ऊपर क्या बचा, 2 बचा। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 29 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 58। 229 इज 58। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास आंसर आ गया है 58। 58 आंसर है, ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। तो होपफुली कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसको थोड़ा सा आप दोबारा देखेंगे, अगेन अगेन देखेंगे इंशाल्लाह। ये इसी तरह के क्वेश्चन जहां पर यहाँ पर हमें क्या है 58% हमारा क्वेश्चन आ गया। तो परसेंटेज जहां पर परसेंटेज की रिक्वायर्ड हो तो इसका ये फार्मूला आप इसको याद करिएगा और इंशाल्लाह आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है 0.5% ऑफ 500 ए। तो ये देन ए, ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, ये जो दोनों चीजें हैं थोड़ा सा वो उसने थोड़ा सा ट्विस्ट किया क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए। ये सिंपल बात है, यहाँ पर हमें परसेंटेज मिला हुआ है, टोटल भी मिला हुआ है। इसका सिंपली ये है कि 0 हमें पता है कि 0.5% को हम कैसे लिखते हैं। जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम यहाँ पर इसको नीचे ले आएंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये तीनों क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, तीनों क्वेश्चंस अगर परसेंटेज के आप सीख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये परसेंटेज का बेस, अगर आप बेस समझ लेते हैं, एक में हमें परसेंटेज को फाउंड किया, दूसरे में एज को फाउंड किया, अब यहाँ पर हम अगेन यहाँ पर क्या कर एज जो गिवन नंबर है उसको फाउंड करना है। तो मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसको 500 के साथ करेंगे तो हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा कि तो 500 का जो है ना 0.5% कितना है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर क्या है, पॉइंट मिला हुआ है, हमने पता है हम जब पॉइंट को खत्म कर लेते हैं तो यहाँ पर नीचे एक 0 मिला लेते हैं। यहाँ आप 10 लिख लें या 0 मिला लें, ठीक है जी। अब हमारे पास पॉइंट खत्म हो गया, तो अब इसको क्या करेंगे, हम टेबल लगा लेंगे। ये 2 0 अगर मैं खत्म कर लिया मैंने, और ये 2 0 मैंने ये खत्म कर लिए, अब यहाँ पर 10 बचा। ओके, अब यहाँ पर 10, यहाँ पर 15, 1 5 इज 5, 2 5 इज 10। तो हमारे पास आंसर क्या आया। अब हमारे पास 2 का टेबल 5 पे नहीं जा रहा, 5 का टेबल 2 पे नहीं जा रहा, यहाँ पर 1 बचा। तो ऊपर वाले जो दो चीजें हैं वो आपस में, ये ऊपर क्या बचा हमारा, ये हमारा ये 5 ये वाला बचा, और ये मल्टीप्लाई ये हमारा 1 ये वाला बचा। ओके, और उसके अलावा 2 हमारा ये नीचे वाला ये वाला बचा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 5 इज 5, और ये नीचे आया हमारा 2। तो इसको अब क्या करेंगे, हम पढ़ चुके हैं पहले, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो 5 को 2 के साथ क्या करेंगे, हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड इस तरह करते हैं, 2 का टेबल इसको 5 के ऊपर पढ़ेंगे, कितनी मरतबा पढ़ेंगे, इतनी मरतबा पढ़ेंगे, करेंगे वो करेंगे, लगाएंगे कितनी 5 से कम आ जाए। 2 2 2 1 2 इज 2, 2 2 इज 4, और 3 4 इज 5, सॉरी 3 2 इज 6। तो बढ़ गया, तो हम 2 2 इज 4, ये 2 2 इज 4, हमने यहाँ पर 4 लगा लिया। फिर ये 5 4 से माइनस होते हैं, इससे जब माइनस किया तो क्या बचा, 1 बचा। अब 1 छोटा है और 2 बड़ा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे, यहाँ पर उधार ले लेंगे। उधार लेने से पहले यहाँ पर हमने पॉइंट देना होता है, पॉइंट के बाद यहाँ पर हमने 0 दे दिया। 0 देने के बाद फिर हमने इसको टेबल लगा लेंगे, 5 का टेबल लगा लेंगे, 5 2 इज 10। अब यहाँ पर जब 10 आ गया तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 2.5। तो हमारा आंसर जो आया वो है 2.5। 2.5, दिस इज आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 है A got 630 marks in exams out of 850. The percentage of marks. Again, percentage का question. A got 63 marks. अब इसने मार्क्स कितने लिए थे? 63 लिए. पहले तो हमने डेटा बाहर निकाल लें. 63 मार्क्स हो गए. एग्जाम्स में आउट ऑफ टोटल मार्क्स कितने थे? टोटल मार्क्स थे 850 थे. ओके जी. टोटल मार्क्स 850. अब यहाँ पर अगेन हमें परसेंटेज मार्क्स चाहिए, परसेंटेज चाहिए. हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब परसेंटेज हमें मालूम होता है तो हम क्या आते हैं, गिवन नंबर, यहाँ पर हमने गिवन नंबर हमने 630 लिख लिए. उसके बाद 630 के बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद 100 यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर, और उसके बाद टोटल नंबर यहाँ पर, टोटल नंबर लिखनी हमने कितने लिखे? 850. अब उसके बाद क्या करेंगे हम? 850 के बाद इसके ऊपर टेबल लगा लेंगे. टेबल लगा लेते हैं. टेबल जब हमने लगा लिया, टेबल कैसे लगाएंगे? हमें पता है कि जब जीरो, नीचे एक जीरो काट दिया, ऊपर एक जीरो काट दिया, यहाँ पर 10 बचा, 5 का टेबल लगा लेंगे. 1 5 इज 5. और कितने बचे बाकी? 3 बचे. इधर 35 हो गए, और 7 5 इधर कितने हो गए? 35. ओके. अब इसको ऊपर ऊपर टेबल लगाएंगे, ये 2 टाइम लग गया. ठीक है जी. इसी तरह अब क्या करेंगे? अब इन दोनों को, ये आपस में, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. यहाँ पर इस तरफ में जगह नहीं, इधर लिख लेता हूँ. 630 टू 630 मल्टीप्लाई 2. ओके जी. इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? और डिवाइडेड बाय ये क्या आ गया? नीचे हमारा 17 बचा. ओके. इसी तरह 17 जब बचा, तो अब इसको जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो 630 का ये कितना बचा? हम कितना बना हमारा? ये 0 आया. 2 3 6 आया. और टू 16 इज 12 आया. क्या हमारा? 1260 आया. और डिवाइडेड बाय 17 आया. अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे. फर्दर सॉल्व करेंगे जब इसको 1260 डिवाइडेड बाय 17. 17 का टेबल 12 पे नहीं जा रहा, तो 126 पे लगाएंगे. 17 का टेबल यहाँ पर इधर लगाएंगे. अगर इस पे 17 7 मरतबा लगेगा. ये मल्टीप्लाई 7 करे, 7 7 इज, ये कितना हुआ? 9. और 1 7 इज 7 7 7 7 इज 49. 9 इधर, 4 इधर. 1 7 इज 7 7 इज 4 इज 1 1 9. अगर हम दूसरा बड़ा, अगर हम इसको लगाएंगे 8 मरतबा लगाएंगे, ये बढ़ जाएगा. तो हमारा आंसर क्या आया? 7. तो यहाँ पर 1 1 9 आया. इधर इधर हमने माइनस कर लिया. इधर हमें उसके बाद 16 के ऊपर, 16 में से 9 के 7 बचे. ठीक है जी. स्पेस कम हो रहा है. 7 में 7 बचे, और 7 बचे, इधर 1 बचा, इधर 0, ये इधर ये 0. तो बाकी हमारा ये 0 बचता है नीचे. ये नीचे हम 0 ले आए. 0 को ऊपर 17 का टेबल लगाएंगे, देखते हैं कितनी मरतबा लगता है. अगर हम 7 मरतबा लगाएं, 4 मरतबा लगा लें. 7 4 is 28, 8 2 8 इधर, 2 इधर. 1 4 is 4 2 6 68 आया. ये कितना है? 70 60, और 2 बचते हैं तो बिल्कुल 4 ही लगेगा. तो 7 4 लगा लिया हमने. यहाँ पर कितना बचा? 68 बचा. ठीक है जी. यहाँ पर 68 में से जब माइनस कर लिया हमने, तो जगह नहीं बच रही, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. तो यहाँ पर माइनस जब हमने कर लिया, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा? 2 बचा. जब 2 बचा तो 2 के ऊपर टेबल 17 का नहीं जा रहा, तो यहाँ पर हम पॉइंट देके यहाँ पर फिर 0 दे देंगे. 0 के ऊपर 1 टाइम जाएगा. तो इसी तरह ये इधर 1 टाइम 17 गया, 3 बचे. अब पॉइंट देने के बाद हम कितनी मरतबा 0 ले सकते हैं? 23 टाइम. 1 टाइम ले लिया, अब दूसरी मरतबा ले लेंगे. अगेन 2 17 34 बढ़ जाएगा. तो 1 1 आ गया. फिर 17 बचा. तो यहाँ पर हमारा फिर 3 बचे, फिर 3 आएगा, तो पॉइंट के बाद हम 2 लगाएंगे. तो ये जो हमारा, ये हमारा आंसर है. हमारा आंसर कितना निकला? 70.4, 74.1. तो हमारा ये आंसर है कि जो हमारे परसेंटेज है, अगर हम 50 मार्क्स हैं और 630 हमने लिए हैं, तो हमारा जो एज है परसेंटेज का, वो 474111% है. ये हमारा क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड.
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ ए इज इक्वल टू 500, ओके लिख लेते हैं। ए बराबर किसके है? 500 के है। यहाँ पर हमने ए बराबर 500 लिख लिया। उसके बाद बी बराबर किसके है? बी बराबर है 25 के, तो हम यहाँ पर 25 लिख लिए। 1 स्टैंड की तरफ प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। सी बराबर किसके? 1000 के, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। C1 2 3, ये हमारा 1000 आ गया। और डी बराबर किसके हैं? 200 के, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2, ये 200 हमारा आ गया। अच्छा, ये तो लिख लिया। अब क्या है? देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब ये सबको ऐड करा, ए प्लस मतलब ऐड करा, ये सिंपल एडिशन है। अब सिंपल इसको एडिशन जब हम करेंगे, सिंपल इसको एडिशन करेंगे, ये पूरा, ये 0 0 5, ये 5 नीचे आ गया, ये हमारा आया 5, ओके हो गया। ये 0 2, ये 2 हमारा ये नीचे आ गया। 2 में से 0 ऐड करें 2 आएगा। ये 5 में से 2 ऐड करें कितना आया? 17, 7 आया। और ये हमारा एक बचा, एक के नीचे कुछ भी नहीं, तो ये एक बचा 7। तो हमारा ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका हमारा आंसर आया 17 टू 5, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा आया 17 टू 5। अच्छा, नेक्स्ट टाइम तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से, तो मल्टीप्लाई 300, ये काम है मल्टीप्लाई 3, ये यहाँ पर काम है मल्टीप्लाई 300 टाइम्स विथ 0 इज इक्वल टू। समझने की बात है कि अगर मल्टीप्लाई 3 को हम मल्टीप्लाई करें 100 टाइम्स 0 के साथ, आंसर क्या आएगा? जितनी मरतबा भी किसी भी डिजिट को, ये रूल है, आप किसी भी 3 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, आंसर क्या आएगा? 0 आया। इसको 100 टाइम करें फिर भी 0 आएगा। यानी किसी भी डिजिट को अगर 0 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। तो हेयर इज आंसर इज आल्सो 0। ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स, द रेशो, ये क्या है यहाँ पर? राशन नहीं, ये रेशो लिखा हुआ है, ये मिस्टेक है उसमें, ऑफ मिल्क एंड वाटर 2:1। इफ द रेशो इज टू बी 1:2, अगर रेशो 1.2 हो, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। सॉल्यूशंस का कर लेते हैं। सबसे पहले मिक्सचर ऑफ लेटेस्ट, मिक्सचर कितना है क्या? एम बराबर कितना है? 60 के है। एम किसके बराबर है? एम बराबर है 60 का। अब एम बराबर है 60 का, तो रेशो कितना? मिल्क और मिल्क रेशो वाटर, ये कितना है? 1:2। अच्छा, अगर 1:2 है और ये मिक्सचर कितना है, अगर हमें पहले, सबसे पहले हमें मालूम ये करना होगा। ये थोड़ा समझने की कोशिश है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अगर पहले हम ये समझेंगे कि ये हम वी हैव टू एसरटेन, हमें मालूम करना है कि मिल्क कितना है, वाटर कितना है। इसका सिंपल तरीका हम पढ़ के चुके हैं कि सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सम ऑफ रेशो लिखेंगे। सम ऑफ रेशो निकालेंगे। सम ऑफ रेशो, सम ऑफ ये आर लिख लिया शॉर्टकट में। सम ऑफ रेशो कितना आ गया? 1+3 आएगा, बराबर कितने का हुआ? 3 की। अब हम अगर मिल्क का निकालेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम 60 लिखेंगे। 60 क्या है? मिक्सचर है। मल्टीप्लाई 1 क्या है? मिल्क के 1 ऊपर लिख लिया, उसको अब डिवाइड करें सम ऑफ रेशो के साथ। 1 3 इज 3 और 2 3 इज 6। अब ये यहाँ क्या हो गया? इसका मतलब है हमें पता चल गया कि जो हमारा जो मिल्क है, ये मिल्क है, ये कितना है? ये 20 लीटर। ठीक हो गया, ये पता चल गया आपको। उसके बाद क्या है? इसी तरह जिस तरह हमने इसको किया, फिर अगेन हम करेंगे। क्या करेंगे हम अगेन हम निकालेंगे, 60 लिख लेंगे। 60 लिख लिया, हमने मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 2 वाटर का लिखा है, वाटर का भी पता होना चाहिए ना। नहीं, वाटर कितना है? 3 मल्टीप्लाई किया, हम 3 का टेबल लगाएंगे। 1 3 इज 3 और 2 3 इज 6 और 20 और 20, 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो कितना आंसर है? हमारा आंसर है 40। यानी 40 लीटर वाटर है और 20 लीटर मिल्क है। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ 20 लीटर मिल्क एंड वाटर। हमें सिर्फ अब यहां तक पता चल गया है। ठीक है जी, कहां तक? बात है जहां तक, ये हमारा आंसर आ गया। अगर यहाँ तक आंसर आता, क्वेश्चन आता है,
तो आपका आंसर यही 40 20 40 होगा। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है, तो आप बता देंगे, सिंपल क्वेश्चन। और फर्दर अगर वो कहता है कि इफ द रेशियो इज टू बी 120, अगर अभी रेशियो कितना है, अभी रेशियो है, अभी रेशियो कितना है, सॉरी यहाँ पर ये मिल्क 2 है और वाटर 1 है, ठीक है जी। ये मिल्क 2 है और वाटर 1 है, और मिल्क का कितना होगा 40 बनेगा, और इसी तरह वाटर कितना बनेगा 20 बनेगा, ठीक है जी। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, इसी तरह यहाँ पर भी करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर भी है ना, ये आगे पीछे है सिर्फ, बाकी एक चीज है, 1 कर लेंगे तो इसका 20 आएगा, 2 कर लेंगे हमारा ये हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आप इसको फर्दर कर लेंगे। पहले क्या था, पहले वो कह रहा था कि 20:1 बराबर क्या था, 20:1 में हमें पढ़ा था कि 40 मिल्क था और 20 वाटर था। अब वो कह रहे हैं कि अगर रेशियो हम इस तरह कर लें, 1:2 कर लें, तो फिर हमारा क्या होगा, देन 1:2 if is ratio is to be 1:1:2, then the quantity of water to be further added, क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना ऐड करें, इसको 1 और 2 कर लें। अगर हम कहते हैं कि मिल्क इतना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, अगर ये जो मौजूद 140, तो मिल्क अगर हमारा 140 हो, तो हमारा वो कितना होगा, क्या नाम है, वाटर कितना होगा, डेफिनेटली 1:2, मतलब डबल हो जाएगा उसके, 1 डबल हो जाएगा तो वो क्या होगा 80 हो जाएगा। अब 80 होगा तो हमें ये पहले पता है कि हाउ द क्वांटिटी वाटर टू बी एडेड फर्दर एडेड, यानी फर्दर कितना ऐड होगा। लेकिन अगर हम 1:2 के साथ करेंगे इसको, 1:2 के साथ अगर इसको हम सोल्व करेंगे 1:2 के साथ, तो हमारा आंसर ये वाला आएगा 420। लेकिन हमें पानी पहले हमारे पास 20 मौजूद है, तो वाटर वी हैव ऑलरेडी, हमारे पास वाटर पहला हमारे पास कितना 20 मौजूद है, 20 मौजूद है, तो बराबर ये 80 है। अब 80 में से माइनस ये 20 निकाल लेंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा 60 लीटर, यानी अब हमें 60 लीटर वाटर ऐड करना है। तो हमारा आंसर इसका क्वेश्चन का होगा 60 लीटर। तो हमारे इस जो पोर्शन है द वाटर टू बी एडेड, इस पोर्शन का हमारे पास आंसर जो आया वो 60 आया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको अगेन अगेन देखेंगे, इंशाल्लाह आपको ये चीज समझ आएगी। एफपीएससी तमाम एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स आप ले लें, कि असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी, असिस्टेंट डायरेक्टर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, उसके अलावा सीएसएस के और पीएमएस के, जो आपका जनरल एबिलिटी के पेपर होते हैं उसमें 40% मार्क्स इन पेपरों में से आता है, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 9 पावर 0। अब 9 के साथ ये 9 लिख लेते हैं, 9 पावर 0, ठीक है, फिर प्लस, फिर कहते हैं कि 0 पावर 9, अब 0 पावर 9, ठीक है जी, 0 पावर 9 किसके बराबर। अब हमें पता है, हमने रूल है ये कि 9 की जब भी किसी भी डिजिट या वेरिएबल और कांस्टेंट के ऊपर जब भी पावर 0 होता है उसका बराबर होता है 1 की। तो प्लस जब 9 मतलब 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 टाइम, जब 0 जितनी मरतबा पे मल्टीप्लाई हो 100 टाइम हो, जितना भी उसका आंसर आता है 0, तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा 1 प्लस बराबर 1। तो दिस इज हमारा आंसर, हमारा यहाँ पर क्या है, आंसर हमारा यहाँ पर है as 1। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने नजर आ रहा हो आपको। तो which one is not a prime number, प्राइम नंबर क्या है हमें पता है, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं तो which are indivisible and they are divisible by itself only। तो यहाँ पर प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर जो दूसरे के साथ डिवाइड ना हो, 2 के साथ 2 का टेबल जाता है और दूसरा नहीं जाता, तो ये भी प्राइम नंबर है। 3 के साथ कोई और टेबल जाता है, 1 इज 1 तो सबके पास जाता है, 1 के अलावा बाकी कोई भी टेबल नहीं जाएगा, ठीक है। तो 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का, 3 के ऊपर या 3 का ये भी, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर हो गया। 5 का टेबल 5 के ऊपर, उसके अलावा 2 का भी नहीं जा रहा, उस पर 3 का भी कंप्लीटली उसको डिवाइड नहीं करा, खत्म नहीं कर रहा, तो क्या होगा 5 इज ऑल्सो। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। तो which one is नॉट अ प्राइम नंबर, तो हमारा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो प्राइम नंबर और नंबर को आप इसे प्रैक्टिस करें, अगर नहीं आपको पता तो हमारे इस चैनल के किसी भी वीडियो में आप देख लेंगे, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, x रेशो 5 और प्रोपोर्शन 3:5। अच्छा, x/5 प्रोपोर्शन 3:5, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मीन? तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि मीन क्या है और एक्सट्रीम क्या है। इस तरह के क्वेश्चन में अब ये देखें, ये एंगल, ये यहाँ से x, ये और 5, ये है एक्सट्रीम हमारा, ये कहलाते हैं एक्सट्रीम। इसको नोट कर लें प्लीज। ये हमारा एक्सट्रीम हो गए, और ये जो दो अंदर के, ये जो दो चीजें, ये हमारे हैं मीन। ये हमारे क्या है? मीन। अब प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को। अगर हम प्रोडक्ट सिर्फ मीन के बारे में पूछ रहा है तो मीन हमारा क्या है? यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15। तो ये हमारा मीन हो गया। ये इन ये जो रकम, इसके जो हम मीन आ गया, इसका 15 है। तो 15 हमारा क्या है? आंसर। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, हम पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या है? ई है, एक्सट्रीम है, और ये क्या है? मीन है। तो हमारा यहाँ पर मीन एक्सट्रीम का क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 12, A has A has 50,000 and B has 20 and C has 30 and D has 10,000. What's difference between A and D ratio? कोई मसला नहीं। इसको पहले, सबसे पहले हम लिख लेते हैं A, उसके बाद हमारे पास क्या है? B, उसके बाद हमारे पास C। इस तरह लिखेंगे तो आपको हमें क्या चाहिए? रेशो चाहिए। तो हम इसका रेशो मालूम करने के लिए ये रेशो की निशानी दे देंगे। अब पहले क्या लिख रहे हैं? पहले लिख रहे हैं कि 5, 4 0, ठीक। हमने रेशो लगा लिया, फिर हमने 20 लिख लिया, फिर हमने ये चार, सॉरी, 4 0 लगा लिया। फिर ये मैंने सी के कितने लिखे? 30 लगा लिए, 30 0 लगा लिए। फिर डी के कितने? हमने 10 10 0 लगा लिए। ओके जी। अब करना क्या है? अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है? हमने पता है जीरो जितने इसके, अगर हमारे पास इसके भी 4 0, इसके भी, इसके भी, अगर मैं 4 इसके 0 खत्म कर लिए, 4 इसके खत्म कर लिए, 4 इसके खत्म कर लिए, 4 इसके खत्म कर लिए, अब मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा ए का 5, बी का 2, सी का 3, और डी का बचा कितना? 10। अब मुझसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए एंड दीज रेशियो? अब ए और डी, ए का क्या है? 5 है, और डी का कितना है? 10 है। अब दोनों में डिफरेंस कितना होगा? दोनों में कितना डिफरेंट होगा? डेफिनेटली दोनों में डिफरेंट होगा कितना? 5 का। तो हमारा आंसर क्या है? 5 है। 10 में से 5 गए, 5 बचे, 5 इज डिफरेंट। तो ये हमारा आंसर। इतना लग बड़ा मुश्किल रहा था, लेकिन अब इसको हम समझ के करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। अगर हमारे क्वेश्चन इस कंप्लीट सेशन में पूरे नहीं हुए तो हम इसको ऐड कर लेंगे दूसरे में भी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 13, A got 25 marks in English, 20 marks in physics, 25 marks in chemistry, and 20 marks in biology. Find the average. Average का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एवरेज का हमने फार्मूला आपके पास पता है कि पहले तो हम एवरेज का फार्मूला ये होता है कि सम ऑफ नंबर्स आर वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पर हमारे पास पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हैं इंग्लिश, ये हो गया इंग्लिश आपका। उसके बाद हम लिख लेते हैं फिजिक्स, ये हमारा हो गया फिजिक्स पी, ठीक है जी। उसके बाद हमारा हो गया मार्क्स फिजिक्स,
इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश हो गया, फिर हो गया फिजिक्स हो गए, उसके बाद हो गया केमिस्ट्री हो गई, केमिस्ट्री के बाद उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद बायोलॉजी हो गई। ठीक है जी, ये हमारी हो गई बायोलॉजी। तो अब इंग्लिश के कितने मार्क्स हैं? इंग्लिश के मार्क्स हैं 25, फिजिक्स के हैं 30, मैथ के हैं, केमिस्ट्री के हैं 25 और बायोलॉजी के हैं 20। अब सबसे पहले हमने इसको करना है, ऐड करना है, क्योंकि सम ऑफ हमने ऊपर पढ़ा है कि सम ऑफ लिखाना है। तो सम, इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। ये यहाँ पर 5 और 5 ये 10, जीरो आ गया एक ऊपर, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 हो गया। अगेन कर लेते हैं, 5 और 10 एक ऊपर, 2 और 3 3 6, 6 इंटू 8, 8 इंटू 10 90 आया। तो हमारे पास और टोटल नंबर कितने हैं, सब्जेक्ट कितने हैं, 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये कितना 4 आया। तो हम यहाँ पर सम कितना आया हमारा, सम हमारा आया 90। और नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी, कितने क्वांटिटी है, 4 आ गए। तो इसके ऊपर टेबल लगा लेंगे 4 का, यहाँ इसको टेबल नहीं लगा, 2 का टेबल लगाएंगे, 2 2 इज 4, 4 2 इज 8, एक इधर गया, 5 2 इज ये। अब यहाँ पर आया 45 और 2। और अभी अगर 45 को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 के साथ, तो 2 का टेबल 2 टाइम, ये 4 आया, यहाँ पर कितना आया, 0 आया, ले आया 5, फिर लिख लिया हमने 2 का टेबल कितनी मरतबा लगाएंगे, 2 2 इज 4, फिर 4 लगाया हमने, 1 आया, पॉइंट दिया हमने यहाँ पर 0 दिया, यहाँ पर 5 दिया, यहाँ पर 10 दिया, तो हमारा 0 आ गया, ये कट गए। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 22.5। ये हमारा आंसर है कि एवरेज मार्क्स ऑफ ए इन ऑल सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट में इसके जो एवरेज मार्क्स थे वो 22.5 अशर। क्वेश्चन हैज बीन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कन्वर्ट 0.5% फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। पॉइंट लिख लें, 5 लिख लें, और इसको, ये आपका 100 आया, हमने पहले पढ़ चुके हैं, 100 लिख लेते हैं। और ये पॉइंट आपका पॉइंट है, पॉइंट को खत्म करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 1 का टेबल इधर लगा लें, 1 5 इज 5, और उसके बाद लगाएं यहाँ पर, इसको काट लें, 2 5 इज 10, ये भी 0, ये बच गया। तो हमारा आंसर क्या आया, 1/200 ही हमारा फ्रैक्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 14 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, ए परचेज्ड अ कार एट 25 lakh and sold it at 23 to 23 lakh, फाइंड लॉस इन परसेंटेज। लॉस इन परसेंटेज का सिंपल जो फार्मूला है कि आप कॉस्ट जो है, कोई भी कॉस्ट है, जिस कॉस्ट पे आप परचेज करते हैं, और कॉस्ट माइनस सेल बराबर है लॉस के। आपने परचेज कितने पे की, 25 लाख पे की, मैं बाकी नहीं लिख रहा हूँ। माइनस कितने की, सेल कितने की, 3 की। आपके लॉस कितना होगा, 2, 2 जो हो ये आपका लॉस हुआ। अब 2 ये कह रहा है कि फाइंड द लॉस इन परफेक्ट परसेंटेज, परसेंटेज मालूम करना है, 2 ले। अब के यहाँ पर लिखना क्या है कि 2, ये 5 0, 2 ले, इस हमने पढ़ा है कि 100 ऊपर आता है और टोटल नीचे आता है जब हम फाइंड करते हैं किसको, परसेंटेज को, किसको, परसेंटेज। 25, ये हमारा 5 0 आ गए, 2 3 4, ये 5, ये 5 आ गए। अब इसके ऊपर टेबल लगा लेंगे हम। टेबल पहले क्या लगाते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 0 को खत्म करें हम, 1 2 3 5 0, इसको खत्म कर लिया। इसके ऊपर 25 के ऊपर 1 टाइम 125, इसके ऊपर 4 टाइम 25। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास दो चीजें बची, एक तो ऊपर हमारे पास 2 बचा और 4 बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो 2 4 इज 8। तो हमारे पास 8% क्या हुआ, लॉस हुआ है। ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का, ये 80 नहीं है,
8%, ओके 8%, ये 8% तो हमारा 8, अलग लिख लेता हूँ यहाँ पर 8% क्वेश्चन हमारा आंसर इसका। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 है, द नंबर आर रेस्पेक्टिवली 20% and 50% more than third person, the ratio of 2% is। इसका भी सिंपल क्वेश्चन है कि सपोज कर थर्ड का हमें मालूम नहीं, जो मालूम नहीं उसको आप 100 ले लें, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब दूसरा, और दूसरा कितना है, फर्स्ट टू मर जो एक तो 100 है, और दूसरा जो जो नंबर जो है थर्ड नंबर है वो 100 है, और जो एक नंबर उससे ज्यादा कितना है 20% है, तो हम 100 के साथ 100 + 20 लिख लेंगे, ठीक हो गया। फिर दूसरा कितना है 50% है, तो आप दूसरा 100 से जो कितना ज्यादा है, ये 50 ज्यादा है, तो इसको 50 लिख लें। इसी तरह हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास इधर आया आंसर 100, और कितना आया 120, और कितना आया 150, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास आंसर आया। अब क्या करेंगे, वो हमसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, द रेशियो ऑफ टू नंबर, यानी जो थर्ड का नहीं पूछ रहा, टू का, यानी इन दोनों का पूछ रहा है। इन रेशियो का हमें पता है, हमने रेशियो सीख चुके हैं पहले। ये 0 खत्म कर लेंगे, ये खत्म कर लेंगे, इसके ऊपर 4 का टेबल लगा लें, 4 3 12, इसके ऊपर 5 का टेबल लगा लें, तो हमारे पास आंसर 4:5 आ गया। यानी इन दो नंबर का जो रेशियो है, जो गिवन है, वो है 4:5। सिंपल क्वेश्चन है, नॉट मतलब डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। आप इस चीज को अगेन अगेन देख लेंगे, इंशाल्लाह आपको चीज समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर टू रेशियो, ये हम मैंने पहले करा चुका हूँ आपको, शायद ये अगेन दोबारा आया है, ये मैं अभी इसी सेशन में करा चुका हूँ, अगर आप पीछे जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, if 40% of number is equal to 2/3 of another number, what is the ratio of first number to the second number? यहाँ पर सपोज करें हम 100 लेंगे, अगर 40% आप ले लेते हैं, 40% ऑफ नंबर इस बराबर किसके है, 2/3 ऑफ ए नंबर, ठीक है जी। 40% ऑफ ए नंबर, 40% हमने 100 लिया, इसको हमने सॉल्व किया, तो 1 2 2 इज 4, और ये हमारे पास कितना है 50 आया, और 5 2 इज 2 एंड 2 इन 2, सॉरी ये 0 खत्म कर दिया हमने यहाँ पर हमारा, ये आप ये 0 खत्म कर लें, ये खत्म कर लें, ये 2 2 इज 4, 5 2 इज 10, तो हमारा पास आंसर क्या है 2, सॉरी हमारे पास आंसर आया 2/5 बराबर किसके है, 2/3 के। अगर इसको हम सॉल्व इस तरह कर लें, 2/सॉल्व इस 2/3 के, तो ये अगर इस तरफ चले जाएगा तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको इधर ही खत्म सॉल्व कर लेंगे, ये 2 यहाँ पर 2 पे चला गया, तो हमारे पास आंसर कितना बचा, 5/2 आया। तो 5/2 को हम रेशो में लिख सकते हैं, 5:2, तो द करेक्ट आंसर इज 5:2, ठीक है जी। इसी तरह के क्वेश्चन है ये, इफ 0.75 रेशो, ये रेशो x प्रोपोर्शन 5:8, एंड x इज इक्वल टू किसके होगा, x बराबर किसके, हमें पता है कि जब हम एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम ये e को कर लेते हैं, e एक्सट्रीम e को कर लेते हैं यहाँ पर 0.75 मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 5 8 इज 40, 0 4 इधर चले गए, 7 8 इज 56, और 6 ये कितना हुआ 60 हो गया। ये हम पता है रूल का। उसके बाद हम रूल में जब डेसिमल होता है, उस पर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, हम ये पॉइंट के राइट साइड पे गिन लेते हैं डिजिट 1 2, ये 1 और ये 2, यहाँ पर 2 आया, तो हमारा आंसर कितना है 6 आया। तो एक्सट्रीम का हमारा कितना आया आंसर 6 का आया। ये बराबर किसके होगा, एक्स मीन के, मीन कितने हैं, मीन है हमारा 5x। अगर 5x है मीन, तो x बराबर किसके हो जाएगा, x बराबर 6 ये हो गया, ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, तो इसी तरह 6 का टेबल हम 5 के साथ लगा लेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे, 1 5 इज 5, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर पॉइंट देके फिर 0 दे देंगे, 2 2 5 इज 10, तो हमारा आंसर यहाँ पर आया 1/2। एक्स बराबर किसके है, 1/2 के है। तो इस क्वेश्चन का भी हमें आंसर
मिल गया यहाँ पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा इस पे। द सम ऑफ थ्री थ्री नंबर्स इज 20। अब यहाँ पर क्या, तीन नंबर हैं जिनके जो वो 98 है। इफ द रेशो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड एंड थर्ड, यानी तीन नंबर कह रहे हैं कि यहाँ नंबर हम अगर लिख लेते, ए एक नंबर है, बी यहाँ पर दूसरा नंबर है, और सी और तीसरा नंबर है, और ये बराबर किसके हैं, ये बराबर है 98 के। ऐसे ही अब यहाँ पर ए का, इसको वो कह रहा है कि इफ द रेशो ऑफ द फर्स्ट टू नंबर, यानी पहले दो का जो ए बी का जो है रेशो वो कितना है, दो का जो हमारा जो रेशो है वो रेशो थ्री है। फिर ये कह रहा है कि एंड द सेकंड एंड थर्ड, अब सेकंड और थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड या थर्ड, इसका रेशो कितना है, इनका जो रेशो है वो है 5:5, इनका जो रेशो है वो है 5:8। अब ये फर्दर कह रहा है कि देन द सेकंड नंबर है, देन द सेकंड नंबर, यानी जो बी है ये कौन सा नंबर है, इसका जो फार्मूला है, सबसे पहले ये नोट कर लें। अगर इस तरह के रेशो आ जाते हैं, सबसे पहले हमने इसको क्या करना होता है, हमने सबसे पहले इसको करना होता है मल्टीप्लाई। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ होगा, और ये 3 8 के साथ होगा। तो क्या होगा हमारा, ये 2 5 इज 10, ये फर्स्ट का आ गया। ये 2 का 5 3 इज 15, ये इसका आ गया। और इसका कितना आएगा, 8 3 इज 24। तो ये हमारा रेशियो आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, अगर टेबल लगा लें, इसके ऊपर 2 का जा रहा है, इस पे नहीं जा रहा है, तो किसी के ऊपर आपस में कोई एक टेबल तो सब पे नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास तीन रेशो तो मिल गए। अब ये कह रहा है कि हमें चाहिए जो सेकंड नंबर है, ये सेकंड, अच्छा ये कह रहा है कि देन द सेकंड नंबर इज, यानी सेकंड नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर क्या है, यहाँ पर 15 है। तो यहाँ पर टोटल कितना है, 98 है। हमें पता है जब टोटल 98 हो, तो उस पे यहाँ पर पहले सम ऑफ रेशो निकालेंगे हम। इनका जो सम ऑफ रेशो कितना निकलेगा, ये 4 और 5, सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो कितना निकलेगा, सम ऑफ रेशो निकलेगा 4 और 5 9, इधर 9 आया, और इधर 2 3 और 4 49। अब हमारा रेशो कितना है, 49 आया। तो हमें सिर्फ अब ये फार्मूला है, ये फार्मूला क्या है कि इसका जो फार्मूला हम लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, हमें टू का रेशो, यहाँ पर हमारा टू का जो सेकंड नंबर का रेशो कितना है, 15 है। ये 15 लिख लिया, मल्टीप्लाई टोटल नंबर के साथ करेंगे हम इसको, और इसको डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, सम ऑफ रेशो 49 के साथ। अब 49 का अगर आपको समझ में चीजें आ रही, 49 अगर डायरेक्ट टेबल लगा लें, 149 इज 49, 249 इज कितना, 98। ये 2 बजे, और 2 4 5 इज यहाँ पर हमारा 30, यानी ये हमें फर्स्ट का नंबर मिल गया। देखें ठीक है ना, इसी तरह अगर आप कर लें दूसरा, ये हमारा जो आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन है हमारे 30। लेकिन हम वेरीफाई करने के लिए हमारा पहले का 30 आया, हम दूसरे का निकाल लें बिल्कुल इसी तरह निकाल लें। क्या करेंगे, हम 10 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो के साथ। ये हमारा, इसको हम करेंगे डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे। जब हमने इसको डिवाइड किया, तो ये अगेन लगाएंगे 1 टाइम, ये 2 टाइम। तो पहले का कितना आंसर आया, जी आया। इसी तरह तीसरे का करें, तीसरे का जो है रेशो 24 है, मल्टीप्लाई करें इसको 98 के साथ करें, डिवाइड करें 49 के साथ डिवाइड करें। अगेन इस पर टेबल लगाएं, बिल्कुल लगा लें। इसके ऊपर 124 1 टाइम, इसके ऊपर 2 टाइम। ये कितना आएगा, 2 4 इज आया हमारा 48 आया। तो पहले का हमारे पास आंसर कितना आया, पहले का आंसर या ऊपर 20 आया, और तीसरे का, दूसरे का कितना, तीसरे का 48 आया, तीसरे का कितना है, क्या है, 30 आया। अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर ये 8 आ गया, यहाँ पर 3 और 4 7, 7 और 2 9, ये आया 98। यानी तीन नंबर है, बिल्कुल तीन है, 98। तो हमारा प्रूफ हो गया। ये पूरा क्वेश्चन अगर वो आपसे, अगर ये इसको अच्छी तरह बार बार देख के समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को ये जरूर आता है इम्तिहानों में, लेकिन ट्विस्ट करके डिफरेंट वे से आता है। तो यहाँ पर अगर हमें चीज समझ में आ जाती है, तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। होप कि आपको ये चीजें फायदा देंगी।
और आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते, आप इस पर दोबारा देखें, बार बार देखें, और इंशाल्लाह ये चीज़ समझ में आ जाएंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको समझ में नहीं आता, आप हमारे इस चैनल को हमारे यहाँ पर कमेंट कर लीजिएगा। और हमारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है व्हाट्सएप का, हम भी यहाँ पर क्लासेस भी लेते हैं, इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। थैंक यू। अगर हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम।